یرحمکم اللہ تعالی۔ اللہ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر اور مجھ گنہگار ناچیز حقیق فقیر پر نازل ہو گئی آمین۔ ہر ایک سمت آیا ہے، کہاں کہاں دیکھیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر ایک سمت آیا ہے، کہاں کہاں دیکھیں یا رسول اللہ، تیرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا، تیرے جمال نے حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب خطیب و امام قوالی پیر مسجد آپ کے سامنے اشعار سنا رہے تھے، اور پیر نصیر صاحب کے شعر بھی انہوں نے سنائے۔ یہ ان کی عاجزی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ پورے شعر کا مطلب انہوں نے آپ کو سمجھا دیا۔ بولی ہے نا، سمجھا بھی دیا، یہ ان کی عاجزی۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ بڑا کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا، صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا اگر کوئی اپنے آپ کو فقیر کہے سبحان اللہ، تو خود فقیر مت کہنا۔ اگر بڑا کوئی اپنے آپ کو فقیر کہہ دے تو خود فقیر مت کہنا۔ تمہارا کہنا اور ہے، اس کا کہنا اور ہے۔ وہ اپنے آپ کو اگر فقیر کہہ رہا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ یہ اس کی عاجزی۔ آج ایسے بھی احمق پیدا ہو گئے، کیا بات ہے، ایسے احمق پیدا ہو گئے، اللہ سمجھنے کی توفیق آمین۔ کہتے دیکھو، حضور نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور یہ لوگ بڑی چالاک قوم ہے۔ کہتے دیکھو قرآن میں بھی ہے، انہیں قرآن میں اور کچھ دکھائی نہ دیا، قرآن میں اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ دیکھو ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ ایک بھونرا ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے پھولوں میں بیٹھنا۔ بھونرا ہوتا ہے نا، باغ میں کبھی آپ جائیے، اب تو باغ بھی بہت کم ہو گئے، باغ میں جائیے تو اس میں کالے رنگ کا ایک بڑا سا بھونرا کیڑا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا؟ وہ کبھی اس پھول میں، کبھی اس پھول میں، کبھی گلاب میں، کبھی چمپا میں، کبھی چمیلی میں، ہے نا؟ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ خوشبو سونگتا ہے۔ کیا سونگتا ہے؟ خوشبو۔ اس کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ خوشبو سونگتا ہے۔ بولو ہے نا؟ اور ایک اور بھی بھونرا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بیٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بھونرا بڑا جا رہا تھا باغ کی سیر کرنے کے لیے، راستے میں اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھونرا وہ گندگی میں بیٹھا ہے۔ کہاں؟ گندگی میں بیٹھا۔ اس کو ترس آیا، سوچا اس نے بتاؤ یہ چھوٹا میرا بھائی ہے، گندگی میں بیٹھا ہے، کیوں نہ اس کو بھی باغ کی سیر کرائی جائے، طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو سنگھائی جائے۔ وہ آیا قریب، کہنے لگا اے بھونرے تو کہاں بیٹھا ہے؟ ارے یہ تو غلیظ جگہ ہے، یہ تو گندی جگہ ہے، چل میں تجھے باغ لے چلتا ہوں۔ اس کو اٹھایا لے گیا، یہ بیچارہ بڑی مشکل سے ساتھ ہو لیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ہو لیا۔ اب باغ میں گیا، جیسی باغ میں جا کے اس بڑے بھونرے نے چھوٹے بھونرے کو پھول پہ رکھا، اس نے ہاتھ پیر نکال دیے، اپنے ہاتھ پیر نکال دیے۔ بڑا بھونرا سوچتا ہے شاید یہ خوش ہو رہا ہے، شاید یہ خوش ہو رہا ہے۔
उसका एक साथी आया, कहा क्या गजब करते हो मियाँ, ये तुमने क्या किया? कहा हमने छोटे भौरे को, छोटे कीड़े को जो गंदगी में था, जो बदबू सूंघ रहा था, इसको हमने बाग में लाके और फूल के ऊपर रख दिया। कहा तुम जानते नहीं हो कि इसकी आदत खुशबू सूंघना नहीं है, बदबू सूंघना है। अरे इसको यहाँ रखोगे तो उसका दम निकल जाएगा। क्या बात है, दम निकल जाएगा। बिला तशबीह हम खुशबू सूंघने वाले हैं और वो गंदगी में रहने वाले हैं। और समझ लेना कि हुजूर की तारीफ करके खुश हो रहा है, समझ लेना खुशबू सूंघने वाला है, खुशबू सूंघने वाला है। और जो हुजूर की तारीफ से चिढ़ जाए, समझ लेना इसको गंदगी पसंद है। क्या बात है, समझ लेना। अल्लाह हमको समझने की आमीन आमीन। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खूबियां नजर नहीं आती, खूबियां नजर नहीं आती। तुमने कुरान पढ़ा, तुमको कुछ और नजर ना आए? तुमने कुरान पढ़ा, कुछ और नजर ना आए? अरे अगर तुमने इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम वाली सूरत देखी थी तो ये भी तो देख लेते कि कहीं कुरान में अल्लाह ने बद्दुआ कह के पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो देख लेते कि जुल्फों को वल्लैल कह के पुकारा। बेशक बेशक। अरे ये भी तो देख लेते कि सीने मुबारक को अलम नशरा कह के सुभान पुकारा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो देख लेते कि हुजूर के जिक्र को वरफ़अना लका ज़िक्र कह के पुकारा। सुभान अल्लाह। अरे ये भी तो देख लेते कि हुजूर के हाथ को इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह कह के पुकारा। ये भी तो देख लेते कि हुजूर की ज़ुबान को वमा यंतिकु अनिल हवा हुवा इल्ला वहयु युहा कह के पुकारा। ये भी तो देख लेते कि जब हुजूर को रब ने पुकारा तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कभी यासीन कह के पुकारा, कभी ताहा कह के पुकारा। ये भी तो देख लेते। और कुछ ना देखा, यही देखा, यही देखा, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यही देखा। हमको समझने की मेरे दोस्तों दुआ करो अल्लाह पाक ऐसी बदअकीदगी से हमको बचाए। आमीन। अब इसमें भी बड़ी मजे की बात है, ये आधा टुकड़ा पढ़ते हैं और बाकी छोड़ दे, साफ कर देते। जहां हुजूर ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, आगे ये भी टुकड़ा है आयत का कि मुझ पर वही नाजिल होती है। इसी से मामला साफ हो गया, मसला हल हो गया। अबे कहते हो हमारी तरह, क्या तेरे ऊपर भी वही नाजिल होती है? तेरे पे तो बड़े डरावने ख्वाब उसको दिखाई देते होंगे। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों हकीकत क्या है? इसी आयत को भी अगर उठा के देखो, क्या है हकीकत? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मैं तुम्हारी तरह। मजे की बात यह है कि अल्लाह ने खुद नहीं फरमाया, बल्कि अपने महबूब से कहा कुल आप कह दो, मैं नहीं कहूंगा। वो रब हो के खुद नहीं कहता। कहा ऐ मेरे महबूब, अगर मैं कहूंगा तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, मैं कहूंगा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा, जब मैं कहूंगा तो यासीन कह के पुकारूंगा। ऐ महबूब आप कहिए, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब आप कहिए मैं तुम्हारी तरह बशर। इसमें क्या रहा है? अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जरा धूम के बोलो अलैहिस्सलाम। मुनाजरा हुआ किससे? नमरूद से। ये नमरूद कौन है? जिसने खुदाई दावा कर दिया था, जिसने आज लोग हुक्मरानों से परेशान होते हैं, हमें कैसे कुछ भी हो, ऐसे बड़े बड़े हुक्मरान आए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये किस खेत की मूली? अरे कारून जैसा, फिरौन जैसा, नमरूद जैसा हुक्मरान आया लेकिन टिक ना पाया, तो ये क्या टिकेंगे? ये क्या टिकेंगे? मुनाजरा। इसने कहा मैं खुदा हूं, नाउज़ुबिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया क्या दलील तेरे पास?
तो मैं खुदा हूँ, देखते नहीं सारी सल्तनत मेरी, सारी रियाया मेरी, हर चीज पे मेरा हुक्म। कहा नहीं, तुम्हारा हमारा सबका खुदा एक है, वहदहू ला शरीक। किसने कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो एक खुदा जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक कहा कैसे, क्या पहचान है? कहा क्या पहचान है? कहा देख, मेरे खुदा की बहुत सिफतें हैं, लेकिन मेरे खुदा की एक ये भी कुदरत है कि वो जिसको चाहता है जिंदा करता है, जिसको चाहता है मौत देता है। बोला है कि नहीं? बेशक बेशक बेशक। मेरा खुदा वो जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे दे। नमरूद ने कहा सुनो, ये तो मैं भी कर लेता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दो कैदी थे उसके पास, उसके पास नमरूद के पास दो कैदी थे, दो कैदी थे। एक कैदी को बुलाया जिसकी छुट्टी होने वाली थी। अभी भाई बहुत से लोग जेल में होते हैं ना, किसी को कुछ सजा, किसी को कुछ सजा। एक वो कैदी था जिसकी रिहाई होने वाली थी, छुट्टी होने वाली थी। बुलाया करीब में, जल्लाद को बुलाया, आओ इसकी गर्दन उड़ा दो। इसको अभी जिंदगी मिलने वाली थी, रिहाई मिलने वाली थी, इसकी गर्दन उड़ा दो। गर्दन उड़ा दी गई। जिसको जिंदगी मिलने वाली थी उसको मौत दे दी। और एक वो शख्स कैदी था जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, मौत की सजा सुना दी गई थी कि इसको सजा दी जाएगी मौत की। उसको करीब बुलाया, कहा तुम आजाद हो। कहा तुम आजाद। तो दो कैदी, एक को मौत की सजा थी उसको आजाद कर दिया, जिसको आजादी थी उसको मौत दे दी। कहा देखो, जिंदा को मौत दे दी, मौत को जिंदगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नालायक, ऐसी दलील देता, सुन फिर और सुन, मेरा खुदा वो है। जरा गौर करना, अब तवज्जो होना चाहिए। मेरा खुदा वो है, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मगरिब से निकालता है, मगरिब में डुबोता है, ईस्ट से निकालता, वेस्ट में डुबोता, पूरब से निकालता, पश्चिम में डुबोता है। अल्लाह अकबर। जब ये कहा तो उसके पास कोई दलील नहीं, खामोश हो गया, खामोश हो गया। पता क्या चला? पता ये चला कि रब वो है। सुभान अल्लाह। रब वो जो सूरज को मगरिब से निकाले, पश्चिम में डुबोए। अब देखो मकाम सहबा में, मकाम सहबा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, साथ में मौला अली भी हैं। झूम के बोलो, हज़रत अली का नाम आता है तो ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है ना। मौला अली, वो मौला अली जिनको मन कुंतो मौला हो फाजा अली मौला कहा गया। वो मौला अली जो इल्म के शहर के दरवाजा है, वो मौला अली मौलाए कायनात, हसनैन के बाबा, खातूने जन्नत के शौहर, दामादे पैगंबर, साथ में किसके? नबियों के सरदार के साथ, रसूलों के आका के साथ, मकाम सहबा में। और फरमाते हैं मकाम सहबा है, असर का वक्त है, असर का वक्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, मौला अली बैठे हुए हैं आपकी गोद में। हुजूर ने अपना सरे मुबारक रखा, तो क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। एक आशिक है, एक माशूक है, एक तालिब है, एक मतलूब है, एक मुहिब है, एक उसका महबूब है। मुहिब बैठा हुआ है, महबूब अपने सरे मुबारक को उसकी गोद में रखे हुए हैं, रखे हुए हैं। और क्या हुआ, और क्या हुआ? हुजूर ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। हुजूर आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसने कहा हुजूर सो रहे थे, मैंने कहा नहीं, हुजूर सोते नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुद हुजूर ने फरमाया तनामो ऐसी भला तनामो कल्बी, मेरी आंख बंद होती है लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। मेरी आंख तो सोती है, दिल जागता रहता है। अब एक आशिक का इम्तिहान हो रहा है,
एक आशिक का इम्तिहान हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक मौलाए कायनात की गोद में रखे हुए हैं, आंखें तो जाहिर बंद हैं। अब हुजूर मौला अली अल्लाह अकबर बैठे हुए हैं, धीमे धीमे देखते क्या है, असर के वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह अकबर, वो अली, वो अली, वो अली कि जिनकी कभी नमाज कज़ा ना हुई हो, वो अली नमाज नमाज तो नमाज जिनकी कभी जमात कज़ा नहीं हुई, जिनकी कभी जमात कज़ा नहीं हुई, ऐसे आशिक़ नमाज, ऐसे आशिक़ नमाज। अल्लाह अकबर, कैसे आशिक़ थे, कैसे आशिक़ थे। एक मर्तबा मौलाए कायनात के पैर में दुश्मनों ने तीर मारा, जहर भरा हुआ तीर उनके पैर पे लगा, बहुत तकलीफ हो रही थी, बड़ी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी, कोई आदमी उस तीर को अगर जरा सा छूता था तो चीख निकल जाती थी, आवाज निकल जाती थी, इतनी तकलीफ हो रही थी। अल्लाह अकबर, लोग परेशान थे, लोग परेशान थे। अली के पैर में तीर लगा है, अगर तीर ना निकाला गया तो जहर पूरे बदन में फिर जाएगा, पूरे बदन में फैल जाएगा। किसी ने बारगाह रिसालत में अर्ज की, अली के तीर लगा है, कैसे निकालें, छूने नहीं देते हैं, छूने नहीं देते हैं। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा देखो अली को नमाज में जाने दो, अली को नमाज में जाने दो। मेरे दोस्तों, अली नमाज के लिए खड़े हुए, जब अली नमाज के लिए खड़े हुए, जिस वक्त अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी है, खुदा की कसम ऐसा लगता था कि कतरा दरिया में जम हो गया है, कतरा दरिया में जम हो गया है। अब उसके बाद अली नमाज में है, ऐसी नमाज हो रही है कि लोगों ने तीर को सिर्फ छुआ नहीं, तीर को पकड़ के घसीट लिया। अली के पैरों में जुम्बिश भी न हुई, जुम्बिश भी न हुई, पैर भी ना हिले, पाँव भी ना हिले, पूरा जहर भरा तीर निकाल दिया गया। अली को कुछ खबर ही ना हुई। जब सलाम फेरा, जब सलाम फेरा तो कहा क्या हुआ, कहा अली आपके पैर में तीर लगा था, वो हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया, आपको खबर ना हुई, कहा नहीं मुझे खबर ना हुई, इसलिए क्योंकि मैं तो जवाले यार में खोया हुआ था, जवाले यार में खोया हुआ था, मैं खुदा को देख रहा था, खुदा मुझको देख रहा था। वो अली है, ऐसे आशिक़े नमाज, ऐसे आशिक़े नमाज जिनकी नमाज तो नमाज जमात कज़ा न हुई। आज इम्तिहान की घड़ी है, आज इम्तिहान हो रहा है, आज एक आशिक का इम्तिहान हो रहा है, आज एक मुहिब का इम्तिहान हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुए अली में, गोदे अली में अपना सरे मुबारक रखे हुए हैं, आंखें बंद हैं, सूरज डूबने को है, सूरज बिल्कुल डूबने को है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात एक मर्तबा सूरज को देखते हैं, एक बार सूरज को देखते हैं, एक बार हुजूर का चेहरा देखते हैं, एक बार सूरज को, एक बार हुजूर के चेहरे को। अक़ल कहती होगी, अक़ल कहती होगी अली क्या करते हो, मुस्तफ़ा को उठा दो, मुस्तफ़ा को उठा दो। अक़ल कहती होगी सुनो सुनो अली, ये नमाज है, नमाज ये मजाक नहीं है, नमाज है, खुदा की इबादत है, खुदा की इबादत है, और वो भी वो नमाज कि असर का नमाज। कुरान में आता है कि नमाजों की हिफाजत करो, खास तौर पे असर की नमाज, यानी असर की नमाज की बड़ी अहमियत। अक़ल कहती होगी अली उठा दो, अक़ल क्या कहती होगी, अली उठा दो, ये नमाज है, खुदा की इबादत है, इसी नमाज का हुक्म अल्लाह के रसूल ने भी दिया, ऐ अली उठा दो। अक़ल क्या कहती, ऐ अली उठा दो, खुदा की कसम इश्क कहता होगा अली तू नमाज तो देख रहा है, लेकिन जाने नमाज को भी तो देख ले, जाने नमाज को भी तो देख ले। अक़ल कहती होगी उठा दे, इश्क रोकता होगा, इश्क रोकता होगा, इश्क रोकता होगा। नमाज जिनके सच्चे में मिली है वही तो साहिब नमाज है, वही तो साहिब शरीयत है। अल्लाह अकबर, आखिरकार इरादा कर लिया हुजूर को नहीं उठाएंगे, हुजूर को नहीं उठाएंगे। इम्तिहान हो रहा था, हुजूर इम्तिहान ले रहे थे। अली को नमाज से ज्यादा मोहब्बत है कि साहिब नमाज से ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, इम्तिहान में पास हो गए, मौलाए कायनात इम्तिहान में पास हो गए, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। जब सूरज डूबा, नमाज के आशिक थे,
जब सूरज डूबा तो आंसू मौलाए कायनात की आंखों से निकल के रुखसार से गुजरते हुए हुजूर अकरम के रुखसार मुबारक में पड़े। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की आंसू हुजूर के रुखसार मुबारक पे पड़े। हुजूर ने आंखें खोली और फरमाया मा युक्ति का या अली, ऐ अली तुझको किस बात में रुला दिया, किस बात में रुला दिया। मेरे दोस्तों हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं, लेकिन ये भी मोहब्बत का अंदाज है, ये भी मोहब्बत का अंदाज है। कहा अली तुम्हें किसने रुला दिया, किसने रुला दिया। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाए, जब से इस्लाम कबूल किया है, जब से होश संभाला है, जब से नमाज का हुक्म आया है, आज तक नमाज कज़ा न हुई थी, आज असर की नमाज कज़ा हो गई थी, इसलिए मेरे आंसू आ गए। कहा तुमने उठाया क्यों नहीं। कहा हुजूर मैं नमाज की परवाह करता या जाने नमाज की परवाह करता, मैं नमाज की परवाह करता या जाने नमाज की परवाह करता। मैं मुझको गवारा ना हुआ कि नमाज की खातिर जाने नमाज को तकलीफ दे दूं, जाने नमाज को तकलीफ दे दूं। अल्लाह अकबर। अब क्या सिला मिला, क्या सिला मिला। अभी अली देख रहे थे सूरज को, अभी अली सूरज को देख रहे थे कि सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला है। मेरे दोस्तों जब अली ने मुस्तफ़ा को उठाया, अब मुस्तफ़ा ने फरमाया तुमको नमाज पढ़ना है। कहा हाँ सरकार पढ़ना है। ये बताओ कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। मौलाए कायनात ने अर्ज की या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो जाए, अदा ही पढ़ लूंगा, अदा ही पढ़ लूंगा। अल्लाहु अकबर। तारीख गवाह है, मकाम सहबा का वो मंजर गवाह है, वो ज़र्रे गवाह है। हुजूर ने एक उंगली का इशारा किया, जो सूरज मगरिब में डूब चुका था, इशारा किया, वो फिर से उठ के आ गया, फिर से उठ के आ गया, फिर से उठ के आ गया। और आने के बाद अभी वही वक्त असर का है। देखो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ कि सूरज बीच में आ गया। अगर बीच में आता तो ज़ोहर का वक्त हो जाता, और अगर बिल्कुल मशरिक में चला जाता तो फजर का वक्त हो जाता। यहाँ नमाज सिर्फ असर की गई थी। देखो क्या इख्तियार मुस्तफ़ा है। नमाज असर की गई थी, असर की नमाज पढ़वाना था। उतना ही सूरज निकला कि जितने में असर का वक्त होता है, जितने में असर का वक्त होता है। अब सूरज निकल गया। अभी सूरज जब डूबा था तो खुदा के हुक्म से डूबा था, खुदा के हुक्म से डूबा था। एक निजाम है, इतने वक्त में सूरज को निकलना है, इतने वक्त में डूबना है, ये उसकी रफ्तार है। सूरज अपनी रफ्तार से निकल के मगरिब में डूबता है। लेकिन अब जब मुस्तफ़ा ने सूरज को निकाल दिया, अब सूरज अपनी मर्जी से डूब नहीं रहा है, बल्कि मौला को देख रहा है, बल्कि अली को देख रहा है। अब अली खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं। अभी अली सूरज को देख रहे थे, अब सूरज अली को देख रहा है, अब सूरज अली को देख रहा है। किसी ने पूछा सूरज डूबते क्यों नहीं हो। कहा जब अली की नमाज हो जाएगी तब डूब जाऊंगा, जब हो जाएगी तब डूब जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब ये मंजर लोगों ने देखा कि आज सूरज डूबा हुआ वापस आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि डूबे हुए सूरज को डूबने के बाद निकलता देख के कहीं लोग मोहम्मद को खुदा ना समझने लगे, कहीं खुदा ना समझने लगे। तभी कुरान की आयत आई, इन्नमा अना बशरुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आप मेरी तरफ, हम तुम्हारी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मौलाए कायनात। देखो इन सहाबा ने शरीयत से ज्यादा साहिब शरीयत की फिक्र की, नमाज से ज्यादा जाने नमाज की परवाह की। इनके अंदर क्या था, इश्क़ रसूल। तभी तो अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अपने सहाबा को क्या फरमाया। देखो एक बात, कोई हाकिम हो, कोई बादशाह हो, तो जो उसके लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियाया, ना? एक हाकिम है, एक हुकूमत करने वाला है,
ایک بادشاہ ہے، ایک لیڈر ہے، تو اس کے جتنے بھی کام کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ رعایا بولتے ہیں، فالوورز بولتے ہیں، کاریہ کرتا بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، جو نیتا ہیں، ان کے نیچے جو کام کرنے والے، بینر لگانے والے، ہورڈنگ لگانے والے، یہ سب کیا بولتے ہیں؟ کاریہ کرتا، کام کرنے والے، ہے نا؟ اور اگر آسان کرتے ہو تو ایک مالک ہوتا ہے اور جو اس کے اندر میں کام کرتے ہیں اس کو مزدور، ہے نا؟ بادشاہ ہے تو اس کی رعایا، کوئی حاکم ہے اور وہ کسی سے کام لے رہا ہے تو وہ اس کے مزدور۔ سبحان اللہ، دیکھو میرے حضور اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرنے والے تھے، ہمارے رسول کتنے قریب تھے، وہ دونوں عالم کے مختار ہیں، دونوں عالم کے مختار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کے ساتھی تھے ان کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ کار کرتا نہیں، مزدور نہیں، بلکہ کیا کہہ کے پکارا؟ صحابی، یہ میرا صحابی ہے۔ صحابی کا مطلب میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ حضور نے اپنی جماعت کو جو ایمان لائے تھے کہا اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہ بلند مقام عطا فرمایا، فرمایا اصحابک النجوم، میرے ساتھیوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آسمان میں رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، یہ چمکدار ستارے ہیں، اور ایسے ستارے ہیں بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ دوست اور بزرگوں، یہ صحابہ کے اندر تھا کیا تھا؟ یار کو تکتے رہنا، یار کو تکتے رہنا، محبوب کو تکتے رہنا، محبوب پہ اپنی جانوں کو فدا کرتے رہنا۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، عجیب عجیب معاملات ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام، بیماری کا وقت ہے، آپ بیمار ہیں، اور آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میرا کچھ بدلہ تمہارے اوپر ہو تو آج لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم کو سبق لینا چاہیے، ہم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہم نے کتنا کچھ لوگوں کا ہلاک کر کے رکھا ہوتا ہے، کتنی لوگوں کو تکلیف دے کے رکھی ہوتی ہے، ہمارا تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ یاد رکھو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی بھی دکھ مت دو، اللہ کی رسول، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف بھی کرو، اس سے معافی بھی مانگو، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں، کیا حضور فرما رہے ہیں، جس کا بدلہ ہو وہ آج مجھ سے لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سے صحابی میں یہ ہمت ہوگی، کون سے صحابی میں یہ جرأت ہوگی وہ کہے کہ آج مجھ کو اپنا بدلہ لینا ہے؟ کون سے صحابی میں یہ جرأت ہوگی؟ لیکن اللہ اکبر، عشق کے الگ الگ کھیل، عشق کے بڑے نرالے کھیل ہیں۔ حضرت عکاشہ آئے، اللہ اکبر، یہ وہ حضرت عکاشہ ہے کہ جو تمل ناڈو میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہاری ہماری خوش نصیبی ہے، وہ صحابی رسول اسی تمل ناڈو صوبے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیٹ قریب آئے، کہا یا رسول اللہ ہم کو بدلہ لینا ہے۔ جب اتنا کہا تو سارے صحابہ اکرام اللہ اکبر گوتم بخود ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اجندہ صحابہ، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولائے کائنات بھی موجود ہیں، طلحہ زبیر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ کہا حضور مجھ کو بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحابہ نے کہا ہوگا اے عکاشہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، حضور نے کہا ہے، حضور نے کہا ہے آج مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، حضور نے فرمایا کیا بدلہ لینا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں ایمان نہ لایا تھا، جب میں ایمان نہ لایا تھا، آپ نے ایک دن مجھے کوڑا مارا تھا، مجھے کوڑا مارا تھا، مجھے درہ مارا تھا۔ اللہ اکبر۔
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहा आज मुझको अपना बदला लेना है। जैसे ये कहा तो सहाबा इकराम में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोगों ने कहा क्या करते हो, क्या गजब करते हो, जानते नहीं हो किसकी बारगाह में हो। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, इसलिए कि मेरे हुजूर जाहिर भी जानते हैं और दिल के अंदर है वो भी जानते हैं। हुजूर जाहिर भी जानते हैं और दिल में छुपी बात को भी जानते हैं। कहा मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, उसको बदला लेने दो, उसको बदला लेने दो। अल्लाह अकबर। घोड़ा मंगवाया गया, दुर्रा मंगवाया गया और मंगवाने के बाद हुजूर ने उकाशा को कहा, लो ये दुर्रा ले लो, ये घोड़ा ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। अल्लाह अकबर। आज लोग दम बखुद हैं, आज देख रहे हैं ये माजरा क्या है, ये होता क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर की तबीयत अलील है, हुजूर बीमार है बज़ाहिर, अल्लाह अकबर, नकाहत है, कमजोरी है, हुजूर बैठे हैं और यहाँ पर उकाशा के हाथ में घोड़ा है। अल्लाह अकबर। लोग सोच रहे थे क्या करता है ये, क्या करता है ये, लोग हैरान थे होता क्या है। अब ये जब घोड़ा दिया गया तो इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जब आपने मुझे कोला मारा था तो मेरे पीठ में कपड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे बदन में कमीज नहीं थी, मेरे बदन में कपड़ा नहीं था, मैं नंगे बदन था तब आपने कोला मारा था। इतना जब कहा ना तो सहाबा की चीख निकल गई। कहा आए उकाशा क्या करते हो, देखते नहीं हो कि हुजूर बीमार है, हुजूर बीमार है, अरे खुदा का खौफ करो, तुमको खौफ नहीं आता। अल्लाह को जब इतना कहा तो हुजूर ने कहा मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। कहा अच्छा तुमको बदला लेना है, तुम्हारे पीठ में कपड़ा नहीं था, बदन में कपड़ा नहीं था। कहा या रसूलल्लाह बदन में कपड़ा नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने कमली मुबारक हटा दी, अपना कपड़ा हटा दिया, नंगे बदन हो गए और होने के बाद कहा आओ अपना बदला पूरा कर लो। जब इतना कहा ना तो उकाशा करीब आए। लोग देख रहे हैं अब क्या होता है, अब क्या होता है, खुदा खैर करे। अरे आज उकाशा को क्या हो गया है, किसकी शान में अपना बदला पूरा कर रहा है, किसकी बारगाह में है, इसको मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर। लोग परेशान थे, लोग परेशान थे। वैसे उकाशा अपने हाथ में घोड़ा लेके आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के दिल कांप रहे थे, लोगों के दिल कांप रहे थे, खुदा खैर करे होता क्या है। लेकिन लोगों ने देखा उकाशा आगे बढ़े, हाथ में घोड़ा है, मुस्तफा जाने रहमत की पीठ में कपड़ा भी नहीं है। उकाशा आगे बढ़े, आने के बाद पीछे की तरफ गए, जाने के बाद हुजूर के जिस्म मुबारक के बिल्कुल करीब गए, अपना घोड़ा जमीन में फेंका। लरज रहे थे, कांप रहे थे। अल्लाह अकबर। आज बहुत बड़ी जुर्रत कर रहे हैं उकाशा, लरज रहे थे, कांप रहे थे। और उसके बाद के जिस्म मुबारक के करीब गए और जाने के बाद कहा या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हम आपके बदला लें, ये कैसे हो सकता है। अरे हमारे तो माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, ये बदला ऐसा नहीं है। मुझको मालूम था, किसी ने बताया था जब मैं हालत कुफ्र में था कि मुस्तफा की एक निशानी ये भी है कि दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत है। इसलिए मैं चाहता था कि आपके बदन में कपड़ा ना हो और मैं मोहरे नबूवत अपने मुंह से चूम लूं, या रसूल अल्लाह। घोड़ा फेर दिया, जिसे उसे लिपट गए और मोहरे नबूवत को अपने मुंह से पोंछा दे दिया। ये हजरत उकाशा है। अरे दोस्तों देखो तो क्या सहाबा का मकाम है, क्या सहाबा का मकाम है, यही हजरत उकाशा है। अल्लाह अकबर। आपने एक मतलब फरमाया हुजूर ने कि उकाशा मैं तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन देखता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ में कंगन देखता हूँ। अब देखो ईमान कितना पुख्ता है, ईमान कितना मजबूत है, ईमान कितना शानदार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हो गया, उसके बाद फारूक आज़म का दौरे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे खिलाफत आया, उनका खिलाफत दौर भी ख़त्म हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ भी विसाल कर गए, उमर फारूक का दौर आया, अभी भी उकाशा जिंदा है। तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई। तो सहाबा आपकी
की इयादत के लिए आ गए, मिलने के लिए आ गए। लोग समझते थे अब उकाशा चंद दिन के मेहमान है, अब उकाशा की रूह निकलने वाली है। लोग करीब आए, फारूक आजम करीब आए, आने के बाद फरमाने लगे उकाशा गम न करना, हम भी दुआ करते हैं, गम न करना, गम न करना। जब तस्कीन की कुछ अल्फाज आपने कहे उनसे तो उकाशा उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। आप उमर क्या समझते हो कि मैं मरने वाला हूँ? सुनो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। कहा कैसे? कैसे? कहा देखो मुझे यकीन है, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था उकाशा मैं तुम्हारे हाथ में किसरा की कंगन देख रहा हूँ, मुझको मौत तब तक नहीं आएगी जब तक मैं हाथों में कंगन ना पहन लूं, हाथों में कंगन ना पहन लूं। अल्लाह अकबर! क्या यकीन था, क्या यकीन था। इसी का नाम तो ईमान है, इसी का नाम तो ईमान है। मुस्तफा ने कहा था तुम मरोगे नहीं जब तक कंगन न पहन लोगे। तारीख गवाह है, वो वक्त आया जब फारूक आजम ने किसरा को फतह कर लिया और माले गनीमत आया और उसमें वो तख्त भी आया कि जिसमें एक कंगन लगा हुआ था, अल्लाह अकबर, वो कड़ा लगा हुआ था। जब माले गनीमत तकसीम किया गया, जब माले गनीमत तकसीम किया गया तो वो कड़ा भी आया और वो कड़ा किसी और के हाथ में नहीं आ रहा था। उमर फारूक ने खादिम को बुलाया, कहा जाओ उकाशा को बुला लाओ। जब उकाशा आए तो कहा ये कड़ा आपको मैं देता हूँ। जैसे ही वो कंगन पहना, किसरा के तख्त का वो कड़ा पहना, अब उसके बाद आपने कहा अब मुझे कभी भी मौत आ सकती है, अब मुझे कभी भी मौत आ सकती है। पहले मुझे इसलिए मौत नहीं आ रही थी कि मुझे यकीन था जब तक मैं कंगन न पहन लूंगा मुझे मौत नहीं आ सकती, लेकिन आज मैंने कंगन पहन लिया है, अब कभी भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर! मेरे दोस्तों, ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का अकीदा था। जो मुस्तफा कहते, जो मुस्तफा कहते उस पे ईमान ले आया करते थे, उस पे ईमान ले आया करते थे। एक सहाबी रसूल थे, निकले हज़रत खुज़ैमा, अल्लाह के रसूल ने कुछ तिजारत की, एक इराबी आदमी से कुछ घोड़ा खरीदा और घोड़ा खरीदने के बाद कीमत अदा कर दी, है ना, कीमत अदा कर दी। जब कीमत दे दी, वो लेके, काफिर आदमी था, इराबी था, लिया और वो मुकर गया। वो क्या किया? मुकर गया। कीमत उसने ले ली और फिर मुकर गया। जब मुकर गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मैं तुमको कीमत दे दी है। कहा नहीं, आपने कीमत नहीं दी, आपने पैसे नहीं दिए। वहां और कोई मौजूद भी नहीं था, एक वो इरादी था और एक हुजूर। दो लोगों के बीच में तिजारत हुई, बिजनेस हुआ। हुजूर ने घोड़ा लिया, कीमत अदा कर दी। इसने कहा आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। चंद मुसलमान वहां से गुजरे, कहा क्या करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? जब हुजूर कह रहे हैं कि तो मैंने दे दिया तो दे दिया होगा, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। उस आदमी ने कहा अगर आपने दे दिया कोई गवाह पेश करिए, अगर आपने दे दिया कीमत तो कोई गवाह। और जानता था कि उस वक्त कोई गवाह था नहीं, है ना, कोई गवाह। जब खुज़ैमा वहां से निकले, देखा गुफ्तगू हो रही है, पूछा क्या बात है। उस आदमी ने कहा मैंने इनको घोड़ा बेचा था और इन्होंने मुझको पैसा नहीं दिया। हुजूर ने और ये कह रहे हैं कि मैंने दे दिया। अल्लाह अकबर! और कोई गवाह भी पेश नहीं करते। अच्छा, खुज़ैमा ने कहा ऐ इरादी सुन, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तूने घोड़ा दिया, हुजूर ने कीमत अदा कर दी। कहा तुम तो थे नहीं। कहा मैं गवाही देता हूँ। जब ये कहा तो हुजूर ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ऐ खुज़ैमा क्या करते हो, तुम तो थे नहीं, तुम तो थे नहीं, तो गवाही कैसे दे रहे हो? कहा हुजूर जब आपने ये बताया कि अल्लाह एक है तो हमने गवाही दी, जब आपने ये कहा कि लौह अर्श कुर्सी है तो हमने गवाही दे दी, जब आपने आसमानों की खबर दी तो हमने गवाही दे दी। अल्लाह के रसूल, जब आसमानों की खबरों पे हम गवाही दे सकते हैं
तो ये तो जमीन का सौदा है, क्या बात ये तो है। जमीन का सौदा है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ कि आपने कीमत अदा कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे दोस्तों, जब इतना कहा तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे, खुश हो गए और फिर इनाम दिया। क्या इनाम दिया? कहा खुज़ैमा सुनो, आज तुमने वो काम किया है कि आज अगर तुम इसके बाद किसी के हक में अकेले गवाही दोगे तो 2 गवाही के बराबर होगा, 2 गवाही के बराबर होगा। पूरी तारीख में, पूरी कायनात में, सारे सहाबा में ये किसी की शान नहीं है तो खुज़ैमा की शान है। अकेले गवाही देते हैं तो 2 लोगों की गवाही पूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमको समझने की तौफीक दे। हमारा खुदा भी बेमिसाल है, उसका रसूल भी बेमिसाल है, उसके सहाबी भी बेमिसाल है। अल्लाह के रसूल को रहमत बना के भेजा गया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सारे आलम के लिए। अभी तो इंसानों का जिक्र सुन लिया ना, अल्लाह, इंसानों का जिक्र तो हम सुनते रहते हैं ना। इंसानों के लिए तो रहमत है ही, जानवरों के लिए भी रहमत, परिंदों के लिए भी रहमत, जमादात के लिए भी रहमत, नबातात के लिए भी रहमत। अरे वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऊँट आया। ऊँट आया और आने के बाद उसने हुजूर के कान में कुछ कहा। हुजूर के कान में कुछ कहा। अल्लाह, सहाबा किराम ये मंजर देख रहे हैं, क्या शान है हमारे आका। हुजूर की कान में उसने कुछ कहा। अल्लाह के रसूल ने उस ऊँट के सर पे हाथ फेरा, उस ऊँट के सर पे हाथ फेरा। कहा परेशान न हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो खुदा का अजाब बहुत सख्त है। अगर झूठ बोल रहे हो खुदा का अजाब बहुत सख्त है, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी परेशानी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखो कैसी रहमत वाले आका हैं हमारे, कैसे रहमत वाले आका हैं। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये ऊँट ने आपको क्या कहा? क्या कहा? कहा ऊँट ने अपने मालिक की शिकायत की, अपने मालिक की शिकायत। इसने कहा है कि इसके मालिक इसको ज़िबा करने वाले हैं। अभी ये बात चल रही थी कि ऊँट के मालिक भी आ गए, वो भी सहाबी थे, ऊँट के मालिक भी आ गए, करीब आए। जैसे वो करीब आने लगे तो रावी फरमाते हैं कि जैसे वो करीब आ रहे थे तो ऊँट छुपने लगा, अपने मालिक को देख के कहाँ छुपने लगा? हुजूर के पीठ के पीछे आने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानता था ये रहमत वाले आका है, जानता था रहमत वाले मुस्तफा है। ये वो है कि अगर करम की नजर कर दें तो हमारी दुनिया आखिरत सब समझ जाएगी। ये ऊँट का, जानवर का अकीदा था, तुम कैसे इंसान हो कि तुम्हारा ऐसा अकीदा है कि हुजूर मदद नहीं कर सकते? तो जानवर से सीखो उसका क्या अकीदा है, उसका क्या अकीदा है। जानता है कि हुजूर है, अगर करम कर देंगे तो हमारा बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुप रहा है, ऊँट छुप रहा है। जब उसका मालिक आया, कहा क्यों, तुम अपना ऊँट लेने आए हो? कहा ऊँट ने तुम्हारी शिकायत की। अल्लाह अकबर। वो मालिक भी हाथ बांध के खड़ा हो गया, जानता था हुजूर फरमा रहे हैं। कहा ऊँट ने तुम्हारी शिकायत की, ये बताओ। इस ऊँट ने कहा कि तुम इसको सर्दियों के मौसम में गर्मी वाले इलाके में ले जाते हो। जब सर्दी का मौसम होता है तो सवार होकर गर्मी के इलाके में ले जाते थे, और जब गर्मी का मौसम होता है तो सर्द चीजें, घास वगैरह इसके पीठ में डाल देते थे। और ये कह रहा है कि जब तक इसने हमसे फायदा उठाया, उसके बाद हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, इब्ज़ाए नस्ल के लिए इसने इस्तेमाल किया। खुद हमसे कई ऊँट इसने पैदा कर लिए,
कई ऊंट पैदा कर लिए, अब एक हमसे कई ऊंट हो गए, और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अब ये मुझको कत्ल करने आ गया। जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो ये ज़िबा करना चाहता है। क्या सच है? किसने पूछा? जरूर। क्या सच है? कहा या रसूलुल्लाह सच है, या रसूलुल्लाह सच है। अल्लाह। अब हुजूर ने क्या कहा? अब वो मालिक ने कहा हुजूर सच है, लेकिन हम कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ये ऊंट हमको वापस कर दें। कहा हुजूर ने नहीं, अब ये मेरी पनाह में आ गया है, अब ये मेरी पनाह में आ गया है, अब उसको वापस नहीं करूंगा, मैं खरीद लूंगा इसको। कहा हुजूर नहीं, ऐसे ही आप ले लीजिए। कहा नहीं, ऐसे नहीं लूंगा, मैं इसको खरीदूंगा। अल्लाह अकबर। कुछ दिरहम हुए और हुजूर ने उस सहाबी को दिए और ऊंट खरीद लिया। तो ऊंट भी जानता था ये रहमत वाले आका हैं, ये रहमत वाले मुस्तफ़ा हैं। फरियाद की, फरियाद पूरी हो गई, फरियाद पूरी हो गई। मेरे दोस्तों जरा सोचो, ये ऊंट का ईमान कितना मुकम्मल मजबूत था। कभी कोई चिड़िया फरियाद कर रही है, कभी कोई ऊंट फरियाद कर रहा है, कभी कोई हिरनी फरियाद कर रही है। हुजूर सबकी फरियाद सुन रहे हैं, सबकी फरियाद सुन रहे हैं, सबकी हाजत रवाई कर रहे हैं। अरे सोचो, जब जानवरों की हुजूर इतनी सुनते हैं और फरियाद पूरी करते हैं, खुदा की कसम अगर आज हम कृष्णा पल्ली की मस्जिद से हुजूर को पुकारेंगे, मेरा ईमान कहता है हुजूर सुनेंगे, हुजूर सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। इसीलिए तो हमें खौफ नहीं होता। जब तक जमीन के ऊपर होते हैं तो भी मुस्कुराते हैं, जब कब्र में जाते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। इसलिए कि जमीन में भी हमारा वही आका हमारी हिमायत करता है, हमारी मदद करता है, और कब्र में भी इंशाअल्लाह वही हमारी दस्तगीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ताला हमको अपने आका का मकाम समझने की आमीन, सुभान उनसे सच्ची मोहब्बत में जिंदगी गुजारने। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।